Students, good morning. Today we will start the new chapter, factor theorem. In this chapter, first of all, I want to tell you the rational integral function. Rational integral function. What is rational integral function? A polynomial of x, in which no term contains a fractional power of x or a negative power of x. मतलब किसी भी फंक्शन में नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर न हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन. कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं. 3x raised to power 4 minus 10x cube plus 7. This is known as rational function. Okay. In this chapter, first of all, we will study remainder theorem. What is remainder theorem? Mathematically, first of all, I tell you the definition. After that, I will try to understand you what is the remainder theorem. Okay, let fx be any rational integer. fx कोई भी एक rational integral function है x का. Okay, or you can say polynomial of x degree greater than 1 or equal to 1, greater than 1 or equal to 1, and a be any real number. A is any real number. Okay, and when fx is divided by x minus a, when fx is divided by x minus a, and the remainder, then the remainder will be equal to fa. This is the remainder theorem. Okay, if fx be any rational integral function of x or polynomial of degree greater than or equal to 1 या फिर 1 से बड़ी डिग्री हो उस फंक्शन में x की, and a be any real number, a कोई भी रियल नंबर है. if fx is divided by x minus a, अगर हम उस फंक्शन को, जैसे ये भी एक फंक्शन है एक टाइप से, अगर मैं इसको x minus a से डिवाइड करता हूं, तो जो fa होगा, जो fa की जो वैल्यू होगी, that will be the remainder of that function. Okay, for an example, एक सम लेते हैं. का फर्स्ट एग्जांपल जो आपके बुक में गिवन है, मैं वही करवा रहा हूं आपको. इट इज गिवन दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब minus 7x plus 4 is divided by 2x plus 1. स्टेटमेंट समझ में आया आपको क्या है? You have to find the remainder when this is divided by this polynomial is divided by this function. Okay, and you have to find the remainder. Okay, first of all, if you divide this, then you will get the quotient and remainder, but you have not to divide this. Using the remainder theorem, you have to find it. So first of all, give the name that it is fx, x cube minus 7x plus 4. In the rough work, you can take it 2x plus 1 is equal to 0. From here, 2x will be equal to minus 1 and x will be equal to minus 2. Then find f of minus 1 by 2. Then put the value x of x cube minus 7 into minus 1 by 2 plus 4, that's equal to minus 1 by 8 plus 7 by 2 plus 4. Taking the LCM, 8 is the LCM, minus 1, 2 4s are 8, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 32 and 60, minus 159 by 8. This will be the remainder. Okay, it is known as remainder theorem. And one more theorem in this chapter you will read, that is factor theorem. I am taking again one more example of remainder theorem. You have to find the remainder when fx is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4. Okay.
and you have to divide it by 1 minus 3x. You have to divide it by 1 minus 3x. So you have to find the remainder only, not the division. Then in rough I put 1 minus 3x is equal to 0. From here 3x will be equal to 1 and x will be equal to 1 by 3. Put the value. F1 by 3 will be equal to 1 by 3 cube minus 6 into 1 by 2 square plus 2 into 1 by 2 minus 4. I think you can calculate it very easily. Please calculate it. और जो भी आपके यहाँ से सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी that will be the remainder. Okay. Now factorial. जब आपने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर निकालना सीखा, if the remainder is equal to 0, if remainder is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 है, जैसे आप 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 5 जा 15, रिमाइंडर विल बी 0. ये मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ. 3 5 जा 15, रिमाइंडर विल बी 0. 17 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, रिमाइंडर विल बी 2. अब यहाँ से क्या देखते हैं कि जब रिमाइंडर कुछ भी आए, कोई वैल्यू आए अदर देन 0, रिमाइंडर जब भी आता है अदर देन 0, तो जो 17 को आपने 3 से डिवाइड किया था, इट मींस 3 जो है 17 का एक फैक्टर नहीं है. लेकिन जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, 15 को जो आपने 3 से डिवाइड किया, तो इट मींस 15 का एक फैक्टर 3 जरूर. ठीक है, यही आपकी फैक्टर थ्योरम है. तो इट मींस जब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इट मींस आपने जिससे डिवाइड किया था वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है. बस यही चैप्टर था आपका. और एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी जरूर आता है बेटा. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the function is 2x cube minus ax square plus 4x minus 1 leaves a remainder. What is saying? It leaves a remainder minus 37. It leaves a remainder. It is given to a remainder minus 37 है. When divided by x plus 2. When divided by x plus 2, and you have to find the value of a this unknown. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ये फंक्शन गिवन है, जब आप इसको x plus 2 से डिवाइड करेंगे, then minus 37 will be the remainder. तो तरीका क्या होगा करने का? आप डिवाइड किससे करें? x plus 2 से. x plus 2 को आप एक बार 0 रख देना. x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? -2. आप f -2 की वैल्यू निकालेंगे. f -2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की जगह -2 पुट कर दीजिए. बस x की जगह -2 पुट करना है. ओके, -2 क्यूब 8, -8 into 2 -16, -2 square 4, -4a, -8 and -1, 16 8 24 and 25 minus 4a. ओके, नाउ ये क्या निकाला आपने? It is remainder, but the remainder is given to you minus 37. It means according to question, minus 25 minus 4a is equal to minus 37. is equal to रखिए हमने. यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू. फिर भी निकाल रहा हूँ, देता हूँ. चलो, minus 37 plus 25 minus 4a will be equal to minus 8. minus minus कैंसिल हुआ, a is equal to 2. तो a की वैल्यू हमने निकाल दी. ओके, next question is, तो इस टाइप से हमने a की वैल्यू निकालनी सीखी. वो मुझे ध्यान देना, वो शायद -12 था, मैंने 12 लिख दिया था. प्लीज करेक्ट योर मैथमेटिकल मिस्टेक्स. सिंपल. ओके, नाउ फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? ये सुनो. फैक्टर थ्योरम ध्यान है, अगर आप रिमाइंडर निकालें और वो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं. क्वेश्चन होते जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में इसने क्वेश्चन में पूछा है कि whether x minus 1
क्या x माइनस 1 fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का फैक्टर है। मुझे बताना है कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। इसके ऊपर x माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। f1 की जब वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, 2 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 4 7 7 0। तो 0 आ गया ना रिमाइंडर। इट मीन्स x माइनस 1 इस फंक्शन का या इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, आगे चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये a की वैल्यू निकालने वाले टाइप का क्वेश्चन है। ओके, स्टेटमेंट सुनिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a, if x plus a is factor, it is given to you कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया बेटा आपको, क्या बोला, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 4। स्टेटमेंट समझ में क्या है? ये फंक्शन गिवन है, x प्लस a इसका फैक्टर है, ये बात भी उसने बता रखी है अपने को। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, पहले मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूं। जब मैं इसको x प्लस a से डिवाइड करूंगा तो x प्लस a से डिवाइड करें तो x प्लस a को एक बार 0 रखते हैं, और x कितना हो जाएगा फिर माइनस a। यहां से f माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। f माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 4 माइनस a क्यूब हो गया जी माइनस a क्यूब, ये प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस 2a प्लस a प्लस 4, ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 3a प्लस 4। ये आपने क्या फाइंड आउट किया है? ये है रिमाइंडर। और उसने क्या कहा था कि x प्लस a फैक्टर है, और फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 हो। तो इट मींस ये कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, या लिख देना कि x प्लस a इज ए फैक्टर, दैट्स व्हाई 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 and 3a will be equal to minus 4 and a will be equal to minus 4 by 3. Okay? Okay, next question. यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, अब दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी आ सकती है। कैसे बोला? स्टेटमेंट को पढ़िए। ये कह रहा है कि if x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस x प्लस b has x minus 2 as a factor, x minus 2 is a factor of this, okay, and it leaves a remainder 3, and it leaves a remainder 3 कब बोला? when divided by x minus 3। स्टेटमेंट समझ में आई क्या है? स्टेटमेंट ये है कि एक पोलिनोमियल है, कोई फंक्शन है, इसको जब आप, इसका एक फैक्टर x minus 2 अपने को गिवन है, ठीक है। दूसरी बात हमें गिवन है कि अगर मैं इस फंक्शन को x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3। ओके, तो एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ योर फंक्शन इज x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस x प्लस b। बिकॉज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को रफ में 0 या फेयर में कर देना चाहिए, x2 f2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस b, फैक्टर था ना ये, तो इसके किसके इक्वल होगा? 0 के। इट मींस 8 2 to the 4 a minus 2 plus b is equal to 0. From here you get 4a plus b, 8 minus 2 6, उधर गया बेटा माइनस 6। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरी बात ये कहता है कि अगर मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या करेंगे आप? f3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हाट विल बी f3? 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस b, ये होगा 3 3 9 27 प्लस 9a माइनस 3 प्लस b, इट इज 9a प्लस 24 प्लस b। ये क्या निकाल? रिमाइंडर। बट व्हाट ही इज सेइंग, इसका रिमाइंडर कितना है? 3, तो इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 3।
It means 9a plus b is equal to 3 minus 24 minus 21. It is equation सेकेंड. और ये चीज तो आप 6th 7th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को. एक बार करना चाहो तो कर भी लो चाहे. इसमें से या इसमें से एक को माइनस कर दो किसी को भी. 4a प्लस b इज इक्वल टू -6. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा. b से b कैंसिल हुआ. 9 minus 4 5a minus 21 plus 6 minus 15 और a की वैल्यू होगी बेटा -3. a की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99% अब जो मैं टाइप बताने जा रहा हूं, या 99 में नहीं तो मोर देन 90% चांस रहता है कि आईसीएससी के एग्जाम्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल आता है. हर साल इस टाइप का 90% चांस रहते हैं. ये क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x -45. क्वेश्चन में तो और भी कुछ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको. और स्टेटमेंट क्या होगी? सिर्फ फैक्टराइज, और कुछ नहीं कर दिया जाएगा आपको. तो फैक्टराइज करने के लिए जो बुक में दे रखा है उसके बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व आसान ही होगा आपका, मुश्किल नहीं होगा. वो आप अपने आप देख लेना. फिलहाल सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाए फैक्टराइज. ओके, सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियोस में या पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. जब कभी भी क्यूबिक इक्वेशन हो, जब कभी भी क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, या आप रफ वर्क में करके देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूं. पहले आप जो भी आपको इक्वेशन या फंक्शन दे रखा है वहां पर आप x को 1 पुट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. इट विल बी 1 क्यूब प्लस 13 प्लस 31 माइनस 45. 31 45 हुआ क्या? 45 हो गया. तो क्या 0 आ गया? यस, आई थिंक ये 0 आ गया. तो ये 0 आ गया. तो इसके बाद ये तो अपने को स्टार्टिंग में मिल गया. बाई चांस क्वेश्चन ऐसा लिखा गया. लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है सपोज कीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? x को फिर -1 पुट करेंगे. फिर चेक करेंगे क्या वैल्यू 0 आई. नहीं आता है, आप x को 2 पुट करेंगे. फिर चेक करेंगे. नहीं आता, -2 पुट करेंगे. नहीं आता 3, नहीं आता -3. 10th लेवल तक आपको 2 3 4 तक में मिल जाता है क्वेश्चन आपको. ओके, तो फिलहाल मेरा 1 पर 0 आया है. तो इट मींस यहाँ पर क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1 है ना. तो इसको आप क्या करेंगे? x -1. तो आप लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन वी फाइंड x -1. आपका 1 पर 0 आया था, x इज इक्वल टू 1 ना. तो उसको आप जब इधर लेकर आएंगे बेटा तो x -1 हुआ. ये ध्यान रखिएगा. x -1 इज फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और यू कैन से पॉलिनोमियल. ओके, फिर आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को x -1 से डिवाइड करेंगे. वो आपने फेयर वर्क में करके दिखाना है. x -1 से डिवाइड करेंगे. इट इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर. डिवाइड करना तो आता है ना, 6th 7th क्लास से सीखते आ रहे हैं. ये x है बच्चे, ये x क्यूब है. तो आप किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर से. x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी x क्यूब माइनस x स्क्वायर. फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज. इट विल बी 14x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45. अब ये x है, ये 14x स्क्वायर है. क्या होगा? 14x. यहाँ 14x होगा तो बच्चे 14x स्क्वायर माइनस 14x दैट्स इक्वल टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल. 5 45x माइनस 45. ये x है, 45x है. 45 इट विल बी 45x माइनस 45. रिमाइंडर इज 0. अगर आपने यहां तक का काम सही किया है तो रिमाइंडर आपका 101% 0 है. क्यों? क्योंकि ये फैक्टर आपका आ चुका था पहले ही और रिमाइंडर उसमें 0 था. अब तो जी मैं इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो अपनी स्टेटमेंट थी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इनटू दिस. इट मींस स्टेटमेंट लिखकर आप इसको x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 लिख सकते हैं. अब ये x -1 तो है,
यहाँ क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सोल्व होती है तो ठीक है, नहीं होती इसको आप वहीं के वहीं छोड़कर अपना आंसर दे देंगे, लेकिन नॉर्मली केसेस में सोल्व होती मिलेगी। सम 14 मल्टीप्लिकेशन 45, 9 and 5, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45। ओके, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे। ये x माइनस 1 बाहर था ही आपके पास, इन दोनों में कॉमन हुआ x, क्या रह गया बेटा x प्लस 9, लास्ट में 5 कॉमन है, क्या रह गया x प्लस 9, और लास्टली हो गया आपके पास x माइनस 1 तो ये है, x प्लस 9 फिर से कॉमन आ गया और रह क्या गया x। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ x टू प्लस 36। ओके, अब जैसे आपका क्वेश्चन था उसमें एक चीज आपको गिवन थी, अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इट इज गिवन दैट x प्लस 9 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब x प्लस 9 उसने फैक्टर बता ही दिया, तो फिर वो आपको पुट करके देखने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट x प्लस 9 से डिवाइड कर देते, यही समझ पड़ता आपका। ओके, आगे चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोगों को, फिर मेरे ख्याल से आप इस चैप्टर को कर सकेंगे पूरा। ओके, लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छे क्वेश्चंस में आता है। इफ x प्लस a इज द HCF, इट इज HCF हो। अब HCF एक टर्म का तो होने से रहा, HCF के लिए कम से कम दो टर्म्स तो चाहिए चाहिए। ये किस किस का HCF है बच्चे, x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, x स्क्वायर प्लस mx प्लस n एंड, और किसका है x स्क्वायर प्लस rx प्लस s। ये कहता है कि x प्लस a इन दोनों टर्म्स का HCF है, एंड देन शो दैट, then you have to show that a is equal to n minus s upon m minus r. You have to show it, you have to prove it. Okay, तो जी अगर x माइनस इन दोनों टर्म्स का फैक्टर क्या बोलते हैं HCF है, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि x प्लस a इसका भी फैक्टर है और x प्लस a इसका भी फैक्टर है। अब आपका फंक्शन मान लीजिए आपके पास ये px, जरूर नहीं कि आप हर बार fx लेके कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यह x रख लेना अगर टर्म्स में x है तो x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, बिकॉज x प्लस a इज अ फैक्टर, x प्लस a इज अ फैक्टर, देयरफॉर f माइनस a क्या होगा 0, तो x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस a, तो ये पुट करेंगे तो इट विल बी माइनस a स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस a plus n is equal to 0, it will be a square minus ma plus n is equal to 0. It is equation number first. Also x plus is a factor of this, similar method से अब आप क्या करेंगे, x से माइनस ए रख देंगे, f माइनस ए, सॉरी इसका नाम क्यों x रख लीजिए, इस पोलोमियल का नाम क्यों x रख दिया, x square plus rx plus s, again x plus a is a factor, x plus a factor तो क्या होगा, therefore q minus a, ये p था बच्चे, तो q minus a will be equal to 0, तो x की जगह माइनस a रख दीजिए, तो q minus a क्या होगा माइनस a square plus r into minus a plus s is equal to 0. From here it will be a square plus minus it will be ra plus s is equal to 0. Equation second, from equation first and second, ये भी 0 है, ये भी 0, from equation first and second, from equation first and second we will get a square minus ma प्लस n इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ra प्लस s, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a वाली टर्म्स एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, इस n को मैं यहीं रहने देता हूँ, इस s को इधर ले आता हूँ माइनस s, दैट्स इक्वल टू माइनस ra इट इज, एंड इट इज ऑफ प्लस ma. ओके, ये n माइनस है ही बच्चे, इज इक्वल टू a कॉमन हुआ, क्या बच गया m माइनस r, और a की वैल्यू कितनी हो गई n माइनस s upon m minus r. You have to show it or you have to prove it. Okay, now please do this chapter complete. If you have any doubt, okay, thank you.